All right, good morning. Welcome back to another class of nervous control and coordination. We were doing a topic called as nerve physiology. So nerve physiology में हमने last topic जो I guess we remember जो complete किया था that was neurotransmitters, right? So there we end up our topic called as nerve physiology. So today's class is only associated with the last section of nervous control. उसके बाद we will start up with sense organs. So that last section, one small section which has been left, that is reflex action. अब ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपने ऑलरेडी 8th standard, 9th standard, 10th standard again and again repeatedly you've been studying this particular topic. So it is pretty easy topic with respect to your understanding, but then इसमें थोड़ा सा हम लोग और gimmicks ऐड करेंगे, थोड़ा सा और value based information याद करेंगे, ठीक है? So when you talk about reflex action, है ना, नाम बता रहा है reflex. So when you say what do you mean by the word reflex, है ना? A reflex is a immediate involuntary responsiveness to stimuli, है ना? For example, if we consider अगर खाना बनाते बनाते अगर हमको कोई गरम चीज लग जाती है तो तुरंत there is a very strong contraction which is being taken place with respect to your muscles of your hands, right? जिसके वजह से there is a fast withdrawal of the hand from the side of injury, right? So जो मतलब टेक्निकली जैसे ही आपको थोड़ा सा भी झटका लगता है तो आप तुरंत विड्रॉ करते हैं with giving a very sudden jerk, and this happens in no time. Basically it is taking place within fraction of second. So मतलब बोलने का मतलब ये है, so that response which you have shown with respect to a strong stimulus is called as reflex action. So घूम फिर कर बात ये है, here the brain does not take time to think over the response. These are some involuntary responses which are being experienced by your body. आपने ये भी एक्सपीरियंस किया होगा with respect to कभी-कभी when you put earbud into your ears for cleaning purpose, तो कभी-कभी ऐसा होता है कि खांसी आ जाती है. That is also a reflex. So ये gag reflex है, मतलब your body is trying to tell you अब बस करो और अंदर नहीं जाना, ठीक है? So that is also a reflex. बोलने का मतलब ये है बेटा कि when you absolutely insert earbud into your ear, that irritates, मतलब technically if it is going too deep, it irritates the tympanic cavity. It basically causes changes in the tympanic cavity का air, right? Because of which your body tries to show a coughing reflex, right? Because आपका ear and throat is connected via eustachian tube. So any small variation in the air quality or air quantity of your tympanic cavity will influence the motor impulses which travel through the eustachian tube and they reach your throat, ठीक है? So that is one response. ऐसे बहुत सारे responses है जो हम day to day daily activities में करते हैं, but we don't pay attention to that. For example, if you are just sitting idle and someone comes and shouts into your ear, है ना, तो पहला इंसिडेंट क्या होता है, हम जोर से चिल्लाते हैं, right? So when you shout, when you scream loudly, automatically involuntarily आपकी आंख बंद हो जाती है ना? So बोलने का मतलब ये है बेटा, it is very difficult. It is technically हम ये सब छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं, but if you very closely start observing things, so this is also a reflex. What is that reflex? Closure of ears and opening of mouth when you hear a loud sudden sound. So ये दोनों जो reflexes है, मतलब देखो sensory input गया through your ear, right? Motor outputs are coming from your mouth, है ना? Mouth के muscles get contracted जिसके वजह से आपका mouth open होता है and also your eyes close. So this is also a reflex which is being experienced, right? Similarly there are when you go to doctors just to check, जैसे हमारे parents वगैरह, तो when they go to doctor to check the sensations of their foot, right? Diabetes में एक condition होती है बेटा जिसका नाम है diabetic foot. Now what happens in diabetic foot basically, because of excessive blood sugar, constant high blood sugar, your nerve endings of the foot gets damaged, ठीक है? तो जैसे जैसे ही ये nerve endings damage जाएंगे,
the sensation with respect to your foot is absolutely completely lost, है ना. तो धीरे धीरे ये sensation रुक जाएगी completely, and chances ये होंगे बेटा कि then absolutely you will not be able to, there is complete immobilization of your leg. ठीक है. So वो सब चेक करने के लिए they use a small rubber pad का hammer, right, and they tap it on your knee. तो जैसे ही वो आप नी पे टैप करोगे तो ऑटोमेटिकली योर लेग गिव्स अ जर्क. Now that is called as a knee jerk reflex or patella reflex. मतलब स्टिमुलस क्या था, आपने एक्सटर्नली टैप किया आपके पटेला को, राइट. सो बिकॉज ऑफ दैट सेंसरी इनपुट the motor inputs, they reach to your muscles of your lower legs and the muscles contract, giving a sudden jerk. So these are a few examples of reflex actions, right. Now very carefully if you observe, जो मैंने पहला reflex आपको बताया था, that is withdrawal reflex, है ना. withdrawal reflex, when you touch any particular hot substance or if you get pricked by someone, there is withdrawal reflex, right. So ये withdrawal reflex is experienced anywhere, everywhere in your body, right. So withdrawal reflex का जो pathway है, that starts from the sensory receptors, it goes to your spinal cord and it comes back to the muscle. मतलब technically it does not go to your brain, right. it does not go to your brain and it does not take time to analyze what kind of stimulus is that. But when you talk about gag reflex, बेटा gag reflex is only associated with your facial region. So घूम फिर कर हम spinal cord की तरफ जा ही नहीं पाएंगे. So gag reflex is purely controlled by your brain. So now basically with respect to who is the controlling unit or where is the interneuron present or which is that connecting point with respect to sensory input and motor input, you have two types of reflex actions. ठीक है. So पहला टाइप क्या था, cerebral reflexes, and दूसरा टाइप है spinal reflexes. नाम बहुत ही सिंपल है and type भी the type is absolutely simple. Something which is the reflex action associated with your brain is called as cerebral reflexes, and the reflex action which is associated with your spinal cord is called as spinal reflexes. So let's first try to understand what is reflex action. Let's try to pen down the definition of reflex action. क्या है ये? It is a immediate, देखो ये एक definition है जो छोटे बच्चों वाली है, immediate, involuntary, immediate, और एक बार ऐड कर सकते हो immediate, quick, मतलब वो तो quick and immediate are synonymous words. So it doesn't make any sense to write it again and again. Same meaning बार बार लिखने की जरूरत नहीं है. We have written immediate, है ना. So it is an immediate involuntary response to a stimuli. Involuntary response to a stimuli. ठीक है. तो अब a reflex action has 5 major components. ठीक है. Let's try to list down the components of reflex action and then we'll talk about the types. So components of reflex action are, देखो बच्चों वाली चीजें हैं, मैं इसमें ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करूंगा because you know it and it is pretty easy to remember. So पहला component क्या है? There is a sensory receptor molecule. दूसरा सेंसरी रिसेप्टर से कनेक्ट किसको होगा, सेंसरी रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन से इट विल गो टू अ इंटरन्यूरॉन और रिले न्यूरॉन, इंटरन्यूरॉन. फोर्थ कंपोनेंट इज मोटर न्यूरॉन and the last component, fifth component is effector organ. Effector organ, it can be muscle or it can be glands. ठीक है. तो 5 major components of a reflex action. Sensory receptors. Now these receptors can be anything. These receptors can be exteroreceptors. Receptors का concept अभी reflex action के बाद करेंगे last में. ठीक है. Sensory receptors can be present outside the body. It can be present inside the body also. It can be present in the connective tissue or muscles for that matter. Sensory neuron. Sensory receptors are directly connected to the sensory neuron.
which will take up the sensory input. This sensory input will be transported to the motor neuron via interneuron. अब कहीं कहीं पे मतलब if you talk about patella reflex, ठीक है, patella reflex में there is no interneuron, so directly it is sensory neuron, sensory से it goes to your motor neuron, और motor से it is fifth one, that is effector organ. तो अभी यहाँ पे कंडीशन क्या है, हम एक सिंपल रिफ्लेक्स आर्क कंसीडर करेंगे वेयर ऑल द 5 कंपोनेंट्स आर बीन इन्वॉल्व्ड, ठीक है. सो सेंसरी रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन से देयर इज इंटरन्यूरॉन. सो दो न्यूरॉन का कनेक्शन है एंड दो न्यूरॉन के कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा, साइनैप्स, करेक्ट. सो यहाँ पे पहला साइनैप्स आता है हमारा. तो यहाँ पे पहला साइनैप्स आ रहा है, इंटरन्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में दूसरा साइनैप्स आ रहा है ना. सो इफ ऑल द 5 components of the reflex action is included, such a reflex action is called as a polysynaptic reflex action, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा है, ठीक है. एक साइनैप्स इज बिटवीन सेंसरी एंड इंटर एंड दूसरा इज बिटवीन इंटर एंड मोटर, ठीक है. सो दैट इज रेफर्ड टू एज polysynaptic reflexes. अगर इंटर न्यूरॉन को स्किप कर दिया तो डायरेक्टली सेंसरी और मोटर के बीच में ही साइनैप्स होगा, सो इट इज कॉल्ड एज मोनोसाइनैप्टिक रिफ्लेक्सेस. नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट एनसीईआरटी में देखो, एनसीईआरटी का अगर आप रिफ्लेक्स एक्शन का डायग्राम देखते हो तो वहां पे 2 पाथवे दिए हैं उन लोगों ने, ठीक है. दे हैव शोन यू पटेला रिफ्लेक्स इन द डायग्राम. सो 2 पाथवे दिया है. एक पाथवे हम लोग बताते हैं विद रिस्पेक्ट टू सेंसरी न्यूरॉन से मोटर डायरेक्टली, और एक पाथवे वो बताते हैं सेंसरी से इंटर, इंटर से मोटर. सो ये सारे कंपोनेंट्स आर बेसिकली पॉलीसिनेप्टिक और मोनोसिनेप्टिक, एक ही डायग्राम में दे दिया है. बट अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आया कि नी जर्क रिफ्लेक्स या पटेला रिफ्लेक्स कौन सा टाइप का रिफ्लेक्स है, इट इज अ मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स बिकॉज़ इट इज कंपैरेटिवली क्विकर, राइट. बट विड्रॉल रिफ्लेक्स की अगर मैं बात करूं, विड्रॉल रिफ्लेक्स की बात करूं, सो इट इज अ मिक्स्ड, इट इज अ पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स. अब देखो फॉर एग्जांपल, इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए यू हैव अंडरस्टूड दैट छोटे बच्चे जो होते हैं, है ना, जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर दे डोंट हैव दिस कैपेबिलिटी ऑफ विड्रॉइंग वेरी फास्ट, है ना. कभी कभी आपने ये कुछ वीडियोस देखा रहेगा जहां पे बच्चे बर्थडे के कैंडल को ब्लो करने के जगह पे वो कैंडल को बुझा देते विद रिस्पेक्ट टू देयर हैंड, बट दे कैन नॉट शो अ वेरी स्ट्रॉन्ग विड्रॉल रिफ्लेक्स. इसका मतलब ये इंडिकेटिव है दैट विड्रॉल रिफ्लेक्स हैज बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर विद रिस्पेक्ट टू योर हैबिचुएशन, है ना. बचपन से आप ये चीजें सीखते सीखते आ रहे हो, नाउ यू आर कंप्लीटली हैबिचुएटेड टू दैट पर्टिकुलर प्रोसेस, है ना. तो घूम फिर कर बात ये है बेटा, इसीलिए आपको याद रखना कि विड्रॉल रिफ्लेक्स इज अ पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स एंड दिस थिंग योर Patella reflex is a monosynaptic reflex. So these are the components of reflex action. Diagram नहीं बना रहा हूँ बेटा मैं reflex action का, हम सिर्फ pathway को trace करेंगे. So sensory receptor are present. It can be present on your skin. It can be present inside your connective tissue or muscles. ठीक है. यहाँ से impulse यहाँ से sensory neuron लेके जाएगा, sensory neuron से inter को जाएगा, inter से it will go to the motor से it will go to the effector organ. So the path traced. So in other words, एक नया कॉन्सेप्ट आता है, नया कॉन्सेप्ट नहीं है, रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, बट बच्चे इन दो कॉन्सेप्ट को समझने में गलत कर देते हैं, ठीक है. रिफ्लेक्स एक्शन इज प्योरली एन एक्टिविटी. इज दैट वेरी क्लियर? इट इज एन एक्टिविटी जहां पे एक स्टिमुलस आया और रिस्पॉन्स मिला. सो इट्स एन ऑनगोइंग एक्टिविटी, राइट. अ स्मॉलेस्ट यूनिट और अ स्मॉलेस्ट पाथ, smallest unit or smallest pathway traced by a reflex action, pathway traced by a reflex action, or simplest pathway or smallest pathway traced by the reflex action is called a reflex arc. ठीक है. सो घूम फिर कर बात यही है कि एक सेंसरी इससे चालू किया आपने, सेंसरी से वो जाएगा, सेंसरी रिसेप्टर से चालू किया आपने, फिर सेंसरी रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन जाएगा बेटा, सेंसरी न्यूरॉन से इंटर न्यूरॉन आएगा बेटा इधर, इंटर न्यूरॉन से अगेन इट विल बी मोटर न्यूरॉन,
और मोटर न्यूरॉन से इफेक्टर। सो दिस इज योर मोटर न्यूरॉन एंड दिस इज योर इफेक्टर। सो एक आर्क के जैसा पैटर्न है, राइट? हेंस इट इज कॉल्ड एज अ सिंपल रिफ्लेक्स आर्क और अ रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है? सो एग्जाम में क्वेश्चन ये आ सकता है कि patellar reflex follows monosynaptic reflex arc, polysynaptic reflex arc, disynaptic and multisynaptic नहीं, none of these। अभी एक ऑप्शन मेरे को नहीं आ रहा था। So in other words you have three option which can confuse you। So आपको ये याद रहना चाहिए because NCERT में ये दोनों जगह पे दिया है, ठीक है? So और as per last years and last to last year type, मतलब past year papers में अगर आप देखोगे, so it has been said that patellar reflex is a monosynaptic reflex। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो monosynaptic ही मार्क करना है irrespective of it is given in both the conditions। ठीक है बेटा? तो रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क ये दो अलग अलग टर्म है, ठीक है? दिस क्वेश्चन कैन बी एक्सपेक्टेड इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। 12th स्टैंडर्ड आपके स्टेट बोर्ड में ये चैप्टर है, ठीक है? 12th स्टैंडर्ड में स्टेट बोर्ड में है। तो वन ऑफ दी 3 मार्क्स या 4 मार्क क्वेश्चन होता है शॉर्ट नोट, राइट अ शॉर्ट नोट एंड रिफ्लेक्स एक्शन। सो आप विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, तो आपको स्पाइनल कॉर्ड का टीएस बनाना है, उसमें नर्व बताना है। अब वहां पे भी अगर आप लेबल करने में गलत कर जाते हो, स्पाइनल कॉर्ड से जो बाहर निकलता है दैट इज अ नर्व, उसके अंदर एक और लाइन बनाकर आपको मार्क करना है एज न्यूरॉन। अंडरस्टैंड दिस। इफ यू गो रॉन्ग इन दीज स्मॉल कॉन्सेप्ट्स और स्मॉल गिमिक्स, है ना, दैट विल नॉट फेच यू मार्क्स एनी व्हिच वेज, राइट? सो अगेन बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है एंड विद रिस्पेक्ट टू राइटिंग अ 3 मार्क्स और 4 मार्क क्वेश्चन, I trust me on this particular point कि अगर आपने perfectly यही पैटर्न से लिख लिया तो you will not lose marks in your examination as well। ठीक है? चलो, so reflex action के बारे में बेसिक चीजें हमको पता चल गया कि reflex arc is a pathway and reflex action is an activity, right? So now let's try to understand the types of reflexes जो अभी हमने बात किया। So types of reflexes कितने हैं बेटा? 2 टाइप के reflexes है। कौन से? Cerebral reflex या cerebral reflex actions, reflexes and spinal reflexes। So I told you cerebral reflexes, the sensory neuron directly goes to your brain and interneuron is present in the brain, whereas in spinal reflexes interneuron is present in your spinal cord। ठीक है? This cerebral reflex is purely related to your brain। मतलब देखो, withdrawal reflex में सिर्फ it goes to your spinal cord, it does not reach your brain। ब्रेन तक पहुंच के वो बाद में, मतलब टेक्निकली इमेजिन कर लो कि आप काम कर रहे हो या फिर बगीचे में फूल तोड़ने गए हो एंड यू रियली डोंट नो देयर इज अ रोज बुश, है ना? तो आप फूल तोड़ते रहो तो आपको पता चल जाता है, ठीक है? और आपको यू गेट pricked by that particular thorn, है ना? and you step aside, you withdraw and you step aside। so for that particular moment when you step aside or withdraw, ये जो information है that is coming from your spinal cord, but a part of the information, a part of your impulse has also gone to your brain। so next time it gets to your brain and it gets stored in your association area। ठीक है? so next time when you are plucking flowers on the similar condition, you will remember thing that यहाँ पे thorn है ना? so you will be much more cautious with respect to that। so motor impulses जो आ रहे हैं they are coming from a spinal cord, brain has nothing to do with it, but every particular spinal reflexes का one particular section of impulse goes to your brain as well for storing, and it is stored as a memory and it is restored when you perform the reflex or when you get the same type of stimulus once again। cool? all right, so now talking about the cerebral reflexes, एक एग्जांपल ले लेते हैं। अभी बात क्या था, अभी हमने एग्जांपल्स बात किए थे। cerebral reflexes का एग्जांपल क्या है बेटा? गैग रिफ्लेक्स। ठीक है? गैग रिफ्लेक्स है। एक और रिफ्लेक्स है जो आपको पता है, दैट इज सिंगल टस रिफ्लेक्सेस, व्हाट डू वी से इट इन हिंदी? हिचकी,
है ना. सो वी नो दिस हिकअप्स, हमने ये ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में पढ़ा है. एनी स्मॉल इरिटेशन टू योर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रीजन, nerves in the gastrointestinal region, any small irritation can lead to motor inputs जो तुम्हारे मेड्यूला से आते हैं, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा से मोटर इनपुट आएंगे, और मोटर इनपुट, दीज मोटर इंपल्सेस और एक्शन पोटेंशियल्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग इनफ. तो ये जो है ये रिपीटेडली आते जाएंगे मोटर इंपल्सेस, जिसकी वजह से डायफ्राम पार्शियली कॉन्ट्रैक्ट होगा एंड योर एपिग्लॉटिस आल्सो फॉल्स ऑन द ग्लॉटिस पार्शियली, क्रिएटिंग अ हिकअप साउंड. ठीक है. सो दीज टू एग्जांपल्स, ये भी ब्रेन से रिलेटेड है. सो सेरेब्रल रिफ्लेक्सेस, स्पाइनल रिफ्लेक्सेस में दो एग्जांपल्स ले लेते हैं. पहला एग्जांपल हमने लिखा था, कौन सा था वो, विड्रॉल रिफ्लेक्स. विड्रॉल रिफ्लेक्स and the other one is patellar reflex, also referred to as knee jerk reflex. ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं. So types हो गया. Now we have to understand a new concept. This is the concept which we are adding up. Cerebral reflexes, spinal reflexes भी ठीक है, not very complicated. A new concept has been added into this particular section, so that concept we'll be understanding. ठीक है. So concept of something called as conditioned reflex. Concept of conditioned reflex. Now this was one of the so when you say reflex action, we purely say कि information brain को जाएगा, एक टाइप के स्टिमुलस को एक टाइप का रिफ्लेक्स होगा. फॉर एग्जांपल मैंने अभी वही बताया आपको, प्रिक किया तो आप विड्रॉ करोगे, है ना. विड्रॉ करने के बाद आप वेव नहीं करोगे, है ना. और अगर सिंगल टच रिफ्लेक्स है, गैग रिफ्लेक्स में मतलब टेक्निकली बोलने का मतलब एक पर्टिकुलर स्टिमुलस को एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स है. If the stimulus changes, the response also change, है ना. ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने पटेला या फिर आपके नी कैप को मारा और आप विड्रॉ करना चालू करोगे या फिर आप खांसने लगोगे, ये नहीं होता ना, है ना. So every particular type of stimulus owns a particular type of response. So there was one scientist, his name was Ivan Pavlov. Ivan Pavlov is called as the father of conditioned reflex. A Russian scientist, Ivan Pavlov, is the pioneer who said we can train our brain. Again, he said that the stimulus can be changed and we can train your brain to respond to another type of stimulus as it was responding to the first type of stimulus. है ना, confusing वापस, है ना. तो conditioned reflex में उसने क्या बताया कि a stimulus will have a response. ठीक है, a stimulus A will have a response A. ठीक है. तो अब उसने क्या किया, can we keep the response same by changing the stimulus. मतलब मैंने अभी आपको वही एग्जांपल दिखाया कि अगर आपने ये कान में ईयरबड डाला तो आपको हिचकी नहीं आएगी, राइट, बिकॉज कान में ईयरबड डाला, इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर थ्रोट एंड बिकॉज ऑफ व्हिच यू स्टार्ट कॉफिंग, है ना. तो एक स्टिमुलस का एक रिस्पॉन्स है, राइट. सो बट ही एंड दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, राइट, बट दिस पर्टिकुलर पर्सन Ivan Pavlov was able to justify his statement saying that we can change the stimulus, therefore we can change the stimulus still keeping the response the same, right. So अब ये समझाने के लिए इसके बाद हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मिरर न्यूरॉन. ठीक है, उसका एक्सपेरिमेंट सिलेबस में नहीं है, बट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट एक्सपेरिमेंट एंड हाउ पीपल अंडरस्टैंड दैट मिरर न्यूरॉन करके भी कॉन्सेप्ट है. मिरर न्यूरॉन इज अ न्यूरॉन व्हिच बेसिकली कॉपीज अ टाइप ऑफ रिस्पांस. इसके ऊपर भी बात करते हैं तो इसके बाद, ठीक है. सो कंडीशन रिफ्लेक्स उसने एक्सप्लेन कैसे किया ना. Pavlov's एक्सपेरिमेंट फेमस क्यों है, बिकॉज it's a kind of unique experiment which a unique but simple experiment, right. So इसीलिए ये famous है because Pavlov used his dog. He had a pet dog, ठीक है. So that is why, because now again adding this beautiful creature and made this particular experiment very special. So अब बोलने का मतलब है this experiment is named as Pavlov's dog experiment, ठीक है.
तो पैवलोव ने मतलब देखो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की भी यही स्टोरी थी. आउट ऑफ अ ब्लू मून ही वाज सो लकी दैट व्हेन ही केम बैक फ्रॉम हिज वेकेशन he was able to see he was able to see zone of clearance around the bacterial colonies in his plate. So he was pretty lucky on that particular point. So Pavlov was also lucky on this particular concept. ठीक है. अब हुआ क्या था? Let's try to understand. We'll try to understand Pavlov's experiment. I'm not drawing the dog face here because it's unnecessary wastage of time. So now you have to assume that there is a dog. ठीक है. So I told you every stimulus will have a response. So let's try to understand. He did this experiment in 3 particular set. ठीक है. ये बीच का कॉलम बाद में लिखूंगा, बताता हूं क्या लिखना है. So first उसका stimulus क्या था with respect to what he observed that whenever he used to get food to the dog. अब बेचारे dogs का condition आपको पता ही है ना. They are always even if they are full, even if their tummy is absolutely full, whenever they smell something very tasty, they start to salivate. And salivation is an attribute of dogs specifically because they salivate to a greater extent. Salivation is not majorly seen in cats also. Okay, it is not majorly seen. Dogs की ability है, right? And distinguishing feature भी बोल सकते हो with respect to other animals, other domesticated animals. With respect to the food, correct? So Pavlov ने ये observe किया whenever he used to get the plate of food, right? By the smell or aroma of the food and also by the sight of the food, because dog used to understand. I don't know the name of the dog, right? So we'll call him dog only, right? So whenever he used to sense the smell or view that particular food, automatically he used to jump and he used to salivate, है ना? So होता होगा, Pavlov भी बोलता होगा doggy stay, है ना? शांत होने के बाद वो उसको खाना देता होगा. That is a different condition altogether, right? So stimulus क्या था in this particular condition? Sight and smell of the food. And response क्या था उसका? Response क्या है? Salivation. We also experience this particular reflex, है ना? आप चल रहे हो और अचानक से कोई अच्छी smell आती है तो we don't salivate like dog, but then we get that craving for food, right? And your mouth also becomes wet. So salivation is also seen in us, but then it is not to that greater extent. Right? So पहला सेट में उसने क्या किया? पहला सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया? Every day he used to get the plate of food and he used to just keep it in his hand, right? He never used to give it to the dog. वो भी एक्सपेरिमेंट कर रहा था ना, तो हाथ में रखता था. Just the smell of the food and the sight of the food एक रिस्पॉन्स देता था. स्टिमुलस क्या था? Let's write down smell and sight of the food. Smell and विजन बोलो या साइट ऑफ द फूड. तो इस स्टिमुलस का रिस्पांस क्या होगा बेटा? इस स्टिमुलस का रिस्पांस होगा सैलिवेशन. द डॉग स्टार्टेड टू सैलिवेट. ठीक है. तो दिस प्रोसेस केप्ट ऑन फॉर लाइक अ प्रीटी गुड स्पैन ऑफ टाइम. अब उसने इसमें क्या किया होता है क्या? एक नया गिमिक ऐड कर दिया. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेकंड स्टिमुलस. So now what he used to do was अचानक से खाना देने से पहले वो क्या करता था पता है? कि जैसे तुम्हारे स्कूल में भी रिसेस की बेल होती है ना? वी अंडरस्टैंड. जैसे रिसेस की बेल हो गई तो पागल हो जाते बच्चे, है ना? तो वैसे ही he was trying to train that particular dog, है ना? उसको भी वो रिसेस खिला रहा था, मे बी. So before giving the food, before showing the food or before getting the food from the kitchen, है ना? अचानक से Pavlov उसके सामने जाता था और एक बड़ा Pavlov had a bell and he used to ring that particular bell, है ना? And this dog was wondering कि कर क्या रहा है, मेरे को तो कुछ नहीं समझ में आ रहा, है ना? So initial days में it was comparatively, initially the dog was absolutely clueless. What is this man doing? Why is he this is the time for my food. Why is he ringing bell all of a sudden, है ना? तो धीरे धीरे वो क्या करता था? खाना देने से पहले बेल बजाता था and then he used to go to the kitchen and then he used to get the food, right? So now he added up a condition here. क्या कंडीशन था? खाना देने से पहले, before you get the stimulus, before you get the sight and the smell of the stimulus, you will have to hear a bell. ये कंडीशन है आपकी, है ना? Conditioned reflex. आप समझ रहे हो कंडीशन का मतलब क्या? शर्त, है ना?
ये रिफ्लेक्स एक्शन एक शर्त पे चलेगा, एक कंडीशन पे चलेगा, धीरे धीरे वो कंडीशन ही स्टिमुलस बन जाएगा. दैट इज व्हाट वी विल अंडरस्टैंड. ठीक है. सो नाउ what he added was the condition. Correct. What he added was the condition. And what was the condition? Ringing the bell, sound of the bell. So अब देखो यहाँ पे तीन stimuluses एक साथ जाएंगे. पहले ear was stimulated. Your sensory receptors of the ear took up the impulses to your brain, to the temporal lobe. अरे घंटी बज रही है, ठीक है. उसके बाद food आया. Again, then once the food was being seen, right? Again, two more stimuluses were added. Two more stimuli were added. राइट. तो अगेन नोज से एक स्टिमुलस गया और आंखों से एक स्टिमुलस गया. सो एवरीवेयर नोज से एक स्टिमुलस गया जो टेम्पोरल लोब में गया, आंखों से एक स्टिमुलस गया जो ऑसिपिटल लोब में गया. सो अगेन थ्री रीजन्स ऑफ द ब्रेन रिसीव्ड द टाइप ऑफ स्टिमुलस एंड ब्रेन को एक ही तरीके से एक्ट करना है. राइट. सो लेट्स ऐड अप द स्टिमुलस कंडीशन हियर. सो देयर वाज नो कंडीशन. ये कॉलम में हम क्या लिखेंगे? कंडीशन. ठीक है. So, पहले कंडीशन, पहले केस में देयर वाज नो कंडीशन. सेकेंड केस में स्टिमुलस क्या था? अंडरस्टैंड. घंटी बजने से डॉग डिड नॉट स्टार्ट टू सैलिवेट. डॉग स्टार्टेड टू सैलिवेट ओनली व्हेन ही सॉ द फूड एंड स्मेल्ड द फूड. सो स्टिल द स्टिमुलस रिमेन्स द सेम. एंड व्हाट इज द स्टिमुलस? साइट एंड स्मेल ऑफ द फूड. स्मेल एंड साइट ऑफ फूड है ना. स्टिमुलस डज नॉट चेंज अगेन. बट यहां पे कंडीशन उसने ऐड कर रहा. कौन सा कंडीशन था बेटा? रिंगिंग द बेल. ठीक है. रिफ्लेक्स क्या होगा उसका? सैलिवेशन. एंड ही केप्ट दिस. ये स्टेप नंबर 2 जो है, ही केप्ट ऑन डूइंग दिस, है ना. For over a period of time, like 1 month, nicely 1 month, 1.5 month, 90 days, etc., etc. So ये करते गया. Now slowly and steadily, dog got trained to this, है ना. डॉग को भी पता चल गया, अरे घंटी बज रही है मतलब खाना मिलेगा. ये आदमी आता है, घंटी बजाता है, फिर चुपचाप अंदर से किचन में से खाना लेके आके दे देता है. तो घूम फिर कर डॉग also got used to it, है ना. And dogs are pretty, they get excited when they think and hear about food and then they see food, right? So over a period of time when conditions was comparatively यही condition चल रही थी कि वो घंटी बजाता था, खाना देता था. So now dog started to associate food with the bell, है ना. So एक particular time पे अगर so धीरे धीरे he got trained to that. He got trained to a type of condition. So now what happened in the third case? Pavlov ने खाना नहीं बनाया था पहली चीज. ठीक है. खाना मतलब डॉग के लिए कुछ प्रिपेयर किया ही नहीं था. And Pavlov just got the bell, ठीक है. And he started to ring the bell in front of the dog. And बेचारा dog, again he was expecting maybe food might appear after this particular bell gets over, the ringing of the bell gets over, and the dog anticipated, he waited for that food, right? But there was no food. But somewhere down the line, dog was trained कि घंटी बजेगी और खाना मिलेगा. But for now, this cruel Pavlov just rang the bell and he did not get the food, right? Just when he was ringing the bell, just listening to the sound, the dog started to salivate, है ना. मतलब बोलने का मतलब he did not get the food. There was no food. There was no smell of the food. There was no sight of the food. It was only a sound impulse which was being produced. A sound which was being produced, which was taken up to the brain, temporal lobe of the brain. ठीक है. And the dog started to salivate. So again, अब यहाँ पे third condition में the condition became the stimulus, right? Conditioned became the stimulus. मतलब घूम फिर कर मैं एक statement बोलूंगा that the dog acquired this stimulus. My mistake. The dog acquired these reflex, है ना. Over a period of time, 1 महीना लगा ना उसको भी to understand, to associate sound and food together, right? So थर्ड कंडीशन में उसने क्या किया बेटा? रिंगिंग द बेल बिकेम द स्टिमुलस एंड देयर वाज नो कंडीशन एट ऑल. सो घूम फिर कर अब क्या हो गया? कंडीशन बिकेम स्टिमुलस एंड अकॉर्डिंग टू दिस स्टिमुलस देयर वाज द सेम रिस्पांस एंड हेंस सच रिस्पांसेस आर कॉल्ड एज कंडीशनड रिफ्लेक्सेस. ठीक है.
So what are conditioned reflexes? Conditioned reflexes are those which associate condition, a specific condition as a stimulus, and they produce the same type of response as it was producing for the stimuli. ठीक है बेटा. सो जस्ट एक बहुत ही बेसिक एक्सपेरिमेंट है. देखो ये बेसिक एक्सपेरिमेंट की वजह से उसको कंडीशन रिफ्लेक्स का बाप बना दिया है ना. सो ही इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्स ओनली फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, राइट. इसके बाद उसने इसको प्रूव करने के लिए बहुत सारे काम किए. ठीक है. इसी से एक और सिमिलर कंडीशन व्हिच इज कॉल्ड एज मिरर न्यूरॉन्स. नाउ वेरी स्ट्रेंजली दिस एक्सपेरिमेंट वाज डन. इट वाज again, this experiment was conducted just to understand the presence of mirror neurons. A lot of scientists they believe that it is a hypothetical concept, है ना. पर हम डे टू डे लाइफ में मिरर न्यूरॉन को एक्सपीरियंस करते हैं. मिरर न्यूरॉन क्या करता है? मिरर न्यूरॉन रिफ्लेक्सेस को कॉपी करता है. जो आपका मोटर रिफ्लेक्सेस है उसको कॉपी करता है. फॉर एग्जांपल आपने ये नोटिस किया होगा. पहले अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करते हैं. ठीक है. इसके बाद वील ट्राई टू अंडरस्टैंड कि डे टू डे लाइफ में हमने कैसे किया, क्या कैसे ये एक्सपीरियंस करते हैं. ठीक है. सो देयर वाज दिस एक्सपेरिमेंट व्हिच वाज डन. देयर वाज अ फेक हैंड एंड देयर वाज अ रियल हैंड एंड देयर वाज अ पार्टीशन. आप समझ रहे हो कि एक आदमी को दोनों हाथ ऐसे रखने बोला है. पहले बीच में पार्टीशन है. दिस पर्टिकुलर लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड दे आर एब्सोल्युटली सेपरेटेड बाय अ पार्टीशन. ठीक है. अब वन ऑफ द हैंड इज आस्क्ड टू केप्ट डाउन एंड इंस्टेड ऑफ दैट पर्टिकुलर हैंड both the hands are resting on the table, correct. One of the hand is asked to be kept down. ठीक है. and instead of that hand, let's say for example यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं मेरे लेफ्ट हैंड को. ठीक है. so लेफ्ट हैंड को मैंने नीचे रख दिया है. so instead of my left hand they keep a fake dummy hand. ठीक है. so I have my right hand on the table and I have my left hand below the table. Instead of my left hand there is a dummy hand. ठीक है. अब जो साइंटिस्ट है वो ट्राइंग टू स्टडी दिस पर्टिकुलर थिंग. ही स्टार्टेड टू गिव स्टिमुलस टू दिस पर्टिकुलर स्टिमुलस टू योर हैंड्स. ठीक है. और इवन स्टिमुलस दे रहा था. पहले उसने क्या किया, फेदर लिया, फेदर से थोड़ा सा ब्रश किया हाथों पर, दोनों हाथों पर इक्वली. ठीक है. उसके बाद नॉर्मल पेंटिंग ब्रश लिया. पेंटिंग ब्रश से ही वाज ट्राइंग टू इंक्रीज द अमाउंट, इंक्रीज द क्या बोलते हैं उसको, इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस व्हिच ही कैन गिव. ठीक है. and while he was doing this particular thing suddenly he takes up a hammer and he hits the fake hand, है ना. तो जैसे ही hits the fake hand the experiences both, देखो लेफ्ट हैंड तो ऊपर है ही नहीं. ठीक है. और आप ये समझ रहे हो कि अचानक से कोई आपके हाथों पे ब्रश कर रहा है और अचानक से किसी ने एक हैमर ले लिया और he started to hit your hand. ठीक है. तो आपका जो एंड ही डिड नॉट हिट इट ऑन योर एक्चुअल हैंड, ही डिड इट ऑन दी फेक हैंड. बट आपको कैसा लगा कि आपका लेफ्ट हैंड थोड़ा सा विड्रॉ होता है, लेफ्ट हैंड के साथ राइट हैंड भी विड्रॉ हुआ. सो घूम फिर कर बात क्या है कि आपका सेंसरी इनपुट, देयर वाज नो सेंसरी रिफ्लेक्स. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? सो यहां पे हम जब भी बोलते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन है ना, ये सिमिलर है ना. अगर हैमर मारो या एक छोटा सा नीडल मारो, it is a type of stimulus जिसकी वजह से your body will show withdrawal. ठीक है. so that candidate या फिर जो experiment का participant था, so he witnessed that both of his hand they got withdrawn. ठीक है. जो हाथ नीचे है वो भी विड्रॉ हो गया, जो हाथ ऊपर है वो भी विड्रॉ हो गया. तो घूम फिर कर यहाँ पे एक लॉजिक लगता है कि अभी तो हमने पढ़ा कि सर सेंसरी इनपुट तो जहां से निकलता है उधर ही मोटर इफेक्टर ऑर्गन आता है ना. हमने यही पढ़ा कि यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ पे नीडल प्रिक हुआ. सो द सेंसरी इनपुट, सेंसरी रिसेप्टर्स हैव टेकन द सेंसरी इनपुट, सेंसरी न्यूरॉन से वो गया, सेंसरी न्यूरॉन से वो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आया और वहां से ही मोटर इनपुट आया और यही हाथ को मैंने पीछे लिया ना. तो बोलने का मतलब ये है कि सेंस to one particular stimulus there is a response of the same hand, but यहाँ पे my stimulus was on a different hand altogether. My stimuli was it was not even on my body, it was not even on that particular person's body, right? It was on a fake hand. But here your brain was tricked as if that person had hit your actual hand, or he didn't even hit your actual hand, right? He didn't even hit your right hand for that particular matter. और right hand को तो withdraw करने की जरूरत ही नहीं है, because उसने मारा तो लेफ्ट साइड पे था, है ना. तो राइट हैंड क्यों विड्रॉ हुआ?
है ना. So this was the concept of mirror neuron. He said that the reflex stimulus तो मिला होगा, चलो stimulus आपने ट्रिक किया है ना. तो stimulus of which was carried by your left hand, मतलब technically there was no stimulus, it was just goosebumps, right? So जो stimulus आपके left side से गया है, left हाथ से गया है ना, और reflex भी left हाथ को ही आना चाहिए. The same type of response was being copied by your right hand. So this is the concept of mirror neuron. यहाँ पे the reflexes are being copied. Okay, reflexes are being mirrored as to understand that. ठीक है, आपने ये एक्सपीरियंस किया है क्या कि क्लास में बैठे हो, अगर एक जन को खांसी आती है तो ऑटोमेटिकली उसके आसपास 2-3 लोगों को भी खांसी आ जाती है ना. ये भी एक्सपीरियंस किया होगा कि अरे एक इंसान पानी पी रहा है तो देखो वेरी कॉन्शियसली यू हैव टू ऑब्जर्व, एक इंसान पानी पी रहा है तो उसको देखकर दूसरा भी इंसान पानी पीता है. सो दैट इज द कांसेप्ट ऑफ मिरर न्यूरॉन, है ना. उस इंसान को प्यास लगी थी, दैट इज व्हाई ही ड्रैंक द वाटर, बट आपको उसी मोमेंट पे कैसे प्यास लग गई? यू वर नेवर थिंकिंग ऑफ थर्स्ट, राइट? सो यू डिडंट फील द थर्स्ट. You felt it when you saw that particular person. You felt it when that particular person experienced a stimuli, right? So here your brain is trying to copy that response. उसको प्यास लगी तो आपको भी प्यास लगी उसको देखकर, right? So it is trying to copy a type of reflex, response. Is that very clear? So ये जो reflexes है, ये जो concept है with respect to mirror neurons, again it is an extra topic just to keep that lecture a little more valuable. ठीक है. So conditioned reflexes, अब देखो ये डॉगी ने ये कंडीशन को अप्लाई किया, it slowly and steadily it started to incorporate the condition as a stimulus, है ना. So बोलने का मतलब ये है कि dog started to acquire the ability, hence conditioned reflexes are also called as acquired reflexes. Conditioned reflexes are also called as acquired reflexes because you learn to understand. चलो ये acquired reflexes अपने day to day life में होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं. So let's try to understand what are these a few examples of acquired reflexes or conditioned reflexes. Imagine करो कि आप नया गाड़ी सीख रहे हो, है ना. तो जब आप गाड़ी सीखते हो तो जैसे मैंने भी सीखा था, है ना, यहाँ पे आकर नया जब भी आप सीखते हो, सो यू आर वेरी कॉन्शियस विद रिस्पेक्ट टू हाउ टू अप्लाई ब्रेक, है ना, व्हेन टू अप्लाई ब्रेक, और एंड यू कीप योर स्पीड ऑफ द व्हीकल आल्सो वेरी स्लो, राइट, सो दैट यू हैव दैट टाइम गैप टू अंडरस्टैंड एंड टू एनालाइज व्हेन टू अप्लाई द ब्रेक. ठीक है. सो आप ये अप्लाई करना सीख रहे हो. व्हेन यू सी your vehicle का speed is absolutely slow, right? So अब condition क्या हो रही है? When you are seeing any particular person crossing the road or any particular vehicle crossing the road, just the sight of that particular thing will create a reflex and your muscles of the hand will contract and your brake will be pulled. ठीक है. So ये तो हो गया with respect to learning. When you are learning, once you get hang of it, है ना, जब आपको बहुत अच्छा गाड़ी चलाना आ जाता है, that time you don't wait, you don't कभी-कभी ऐसा होता है कि आप बहुत स्पीड में हो और अचानक से कोई गाड़ी आ गई एंड तुरंत आपका क्या बोलते हैं उसको, इमरजेंसी ब्रेक, है ना, तुरंत आप ब्रेक लगा लेते हो विद रिस्पेक्ट टू दैट. सो पहला का कंडीशन एनालाइज करो और अभी का कंडीशन एनालाइज करो. देयर द कंडीशन, द स्टिमुलस वाज sight of the particular vehicle which was being passing, right? And after sight आपका पहला response क्या था? You slowed down your vehicle. But अब क्या हो रहा है? तुरंत you did not slow down your vehicle. आपने you took no time to think कि ब्रेक लगाना है. You don't think. पहले आप सोच रहे थे कि गाड़ी स्लो करो फिर ब्रेक लगाओ, right? And now you don't. There is no moment of thinking कि ब्रेक लगाना है and automatically आप ब्रेक लगा लेते हो, right? So that is an example. Applying brake with respect to any particular site of any disturbance, है ना. So बोलने का मतलब ये है बेटा कि ये एक acquired reflex है. One more reflex, एक और example ले लेते हैं with respect to this, है ना. You learn typewriting. तो पहला कंडीशन कैसा था? अगर मैं टाइपराइटिंग की क्लासेस जाता हूँ, है ना, उनका भी कोई पैरामीटर होता है, 30 वर्ड्स पर मिनट, 60 वर्ड्स पर मिनट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो पहले जब भी आप इनिशियल स्टेजेस में टाइपराइटिंग सीखते हो, सो पहले क्या करते हो आप, you're constantly
you're constantly your sight, your vision is glued to the screen, है ना. स्क्रीन पे देखोगे फिर कीबोर्ड देखोगे, स्क्रीन पे देखोगे कीबोर्ड देखोगे. तो मैं टाइप करूंगा ABCD and then I will absolutely see it on the screen, right? So here the stimulus is both the sight of the screen and sight of your keyboard, correct? बट जैसे जैसे आपको समझ में आ जाता है ये कीबोर्ड तो क्वालिटी टाइप का है, तो ये कीबोर्ड में तो यू डोंट हैव टू मेमोराइज थिंग्स. एक बार आपको कीबोर्ड बाय हार्ट हो गया, सो आफ्टर दैट यू डोंट इवन हैव टू लुक एट द कीबोर्ड, यू आर जस्ट लुकिंग एट द स्क्रीन, करेक्ट. सो ये एक अक्वायर्ड रिफ्लेक्स है. पहला कंडीशन क्या था, स्टिमुलस क्या था, साइट ऑफ द स्क्रीन एंड साइट ऑफ द कीबोर्ड. अब कंडीशन क्या है, अब ये क्या था बेटा, स्टिमुलस क्या था, ओनली द साइट ऑफ द स्क्रीन. जैसे जैसे आप स्क्रीन को देखते हो ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट टाइपिंग. सो दैट इज आल्सो वन ऑफ द एग्जांपल विद रिस्पेक्ट टू अक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस. कूल. सो और कहां पे ये एग्जांपल्स देखेंगे अक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस के और एग्जांपल्स में. चलो हाँ, एक और है स्वेटर बनाना. जब मम्मी स्वेटर बनाती है ना, तो पहले जब ये स्वेटर बनाना सीखती है ना, तो शी केयरफुली ऑब्जर्व्स where is the needle going, how is it being twisting and turning. तो पहले उसका constantly concentration is completely glued to the process of knitting, ठीक है. बट धीरे धीरे उसको समझ में आ जाता कि अरे ऐसे ऐसे घूमना है, ऐसे ऐसे घुमाना है. अब वो क्या करती है, मस्त टीवी लगाती है, सास बहू की सीरियल है, ठीक है, और टीवी बनाते हैं, टीवी देखते 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 she doesn't even have to look at that particular how कि ये स्वेटर का गमछा तो नहीं बन जाएगा. So कुछ भी बोला, so you can kill me for this. So please, ऐसा हो जाता है कभी कभी लेक्चर के फ्लो में, हद हो जाती है कि टीचर बहुत ही खराब जोक मार ले, तो उस चीज को मैं एडिट नहीं करूंगा, ठीक है. आप एडिट कर लो आपके लेक्चर से. Again, come back. So coming back to that knitting, process of knitting. So initially वो क्या करती है, knitting का process को सीखती है. So technically her stimulus was the sight of knitting. अब उसका stimulus change हो गया. अब वो क्या कर रही है, धीरे धीरे what is she doing? She is adding up the condition. तो अब वो क्या कर रही है, धीरे धीरे वो टीवी देखती है, टीवी देखते देखते constantly she is glued to the TV. जब भी ऐड आता है तभी वो उधर नीचे देखती है, ठीक है, ताकि स्वेटर भी खराब ना हो. Over a period of time उसकी प्रैक्टिस इतनी स्ट्रांग हो जाती है that she doesn't even have to look at this particular knitting process. Her attention is completely glued to the television screen, and the process of knitting takes place. So this is also a reflex which has been experienced, and such a reflex is nothing but acquired reflexes. ठीक है. तो मैंने आपको कंडीशन रिफ्लेक्सेस के बहुत लंबा चौड़ा एक लिस्ट दे दिया है, तो ये आप मैं वापस नहीं लिखता बेटा, है ना, आपके नोट्स में ऑलरेडी वो लिस्टेड है. सेरेब्रल रिफ्लेक्स और स्पाइनल रिफ्लेक्सेस भी लिस्टेड है. अनकंडीशनड रिफ्लेक्स एंड कंडीशनड रिफ्लेक्स. अनकंडीशनड रिफ्लेक्स वो है ना, जो मैंने आपको बताया, जो बच्चे सीखते नहीं है. यू डोंट लर्न हाउ टू विथड्रॉ द हैंड, यू डोंट लर्न हाउ टू कॉफ, right? So you don't learn how to give hiccups. So these are something which are not learned in your lifetime. ठीक है. Whereas acquired reflexes are learned in your lifetime. ठीक है बेटा. So that ends with our topic with respect to reflex action. अब reflex action से ही related एक concept है जो है sensory receptor. So we'll try to understand the sensory receptor or types of receptors, which is the last section of this particular chapter. That is, मैं जानबूझ के तुमको थोड़ी सी temporary खुशी दे रहा हूँ. So it is temporary, ठीक है. उसके बाद आप हमको ear और eye पढ़ना है, which we'll do it in the next class. ठीक है. So today's जो आपका नर्वस कंट्रोल वाला जो चैप्टर है वो आज खत्म हो जाएगा. सेंस ऑर्गन्स जो उसका एक्सेसरी पार्ट है वो हम बाद में करेंगे, ठीक है. सो आई एम इरेजिंग दिस मच. Acquired reflex, I am hoping that everyone understood what is it. कुछ नहीं. acquired reflexes में you start adding up or you start assuming that the condition which you incorporated, now that condition has become the stimulus. So chalo, let's try to understand.
let's try to understand the next topic, that is receptors. So what are receptors? Receptors are sensory organs. इसको organs मतलब sensory part, ठीक है? जैसे हम बोलते हैं, जैसे हमने एनिमल किंगडम में पढ़ा था, that nidoblast is the stinging cell, whereas nematocyst is the stinging organ, है ना? तो यहाँ पे receptor is a cell basically, ठीक है? So receptor का entire cell is not functioning. कुछ ऐसे specific structures होते हैं, like for example stereocilia, which helps to take up that particular stimulus, है ना? तो it is referred to as receptors are sensory organs. अलग कलर क्यों ले लिया? Receptors are sensory organs taking up sensory impulses to sensory neuron. ठीक है? बेसिकली बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है. स्किन के ऊपर भी बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं, बहुत सारे टच रिसेप्टर्स है, पेन रिसेप्टर्स है ना? कॉर्निया में बहुत सारा रिसेप्टर्स होता है ना? थोड़ा सा भी आंखों में डस्ट चला जाता है तो यू स्टार्ट ब्लिंकिंग. ये सब चीजें जो है दे आर रिसेप्टर्स बेसिकली. ईयर के अंदर भी रिसेप्टर्स है, नोज के अंदर रिसेप्टर्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. टंग के ऊपर रिसेप्टर्स है. So based on the position we have to understand the classification. So पहला is based on classification based on position. Classification based on position. Where are these receptors present? ठीक है? So based on the position you have three type of receptors. Exteroreceptors, proprioceptors and interoreceptors. Exteroreceptors, proprioceptors and interoreceptors. अब common sense बेटा. Extero मतलब outside, so they are placed outside the body. मतलब it is placed on the surface, body surface. ठीक है? तो एग्जाम्पल इसके क्या होंगे? एग्जाम्पल will be receptors of the skin. Receptors of skin, tongue, नोज एक्सेट्रा. ठीक है? सो ये रिसेप्टर्स हैं. इंटरोरिसेप्टर्स, कॉमन सेंस अगेन. इंटरोरिसेप्टर क्या है? जो अंदर प्रेजेंट है. तो इंटरोरिसेप्टर क्या होगा? इट इज प्लेस्ड इनसाइड द बॉडी, है ना? बॉडी के अंदर कहां पे रिसेप्टर्स होंगे, है ना? बॉडी के अंदर स्ट्रेच रिसेप्टर्स है. एग्जांपल ले लेते बेटा. स्ट्रेच रिसेप्टर्स कहां पे स्ट्रेच रिसेप्टर्स पढ़े थे हमने? स्ट्रेच रिसेप्टर्स ऑफ हमने हेरिंग बॉयज रिफ्लेक्स पढ़ा था, है ना? स्ट्रेच रिसेप्टर्स ऑफ हेरिंग बॉयज रिफ्लेक्स. उसके बाद एक और स्ट्रेच रिसेप्टर यूरिनरी ब्लैडर में पढ़ा है. तो स्ट्रेच रिसेप्टर इंटरनली प्रेजेंट है. इसके अलावा देयर आर आल्सो बैरो रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द एंडोथेलियम, है ना? प्रेशर एंडोथेलियम ऑफ योर ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए बैरो रिसेप्टर्स, है ना? जो कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स के एंडोथेलियम में प्रेजेंट होंगे, आर्टरीज के एंडोथेलियम में प्रेजेंट होंगे, जिसके वजह से which takes up we have spoken about Mary's law, Starling's law and Mary's law. So Mary's law में हमने पढ़ा था with respect to the use of baroreceptors. ठीक है? So both of these examples are for interoreceptors. Very clear? Now what is proprioceptors? Proprioceptors are placed in the connective मतलब specialized tissues. So बोलने का मतलब ये है, so these receptors are placed or they are present
in internal tissues like connective tissue, joints, muscles, etc. ठीक है, ये इंटरनल, ये आउटसाइड बॉडी आउटर सरफेस पे है, ये इनर सरफेस पे है। ठीक है, इधर लिख देता हूं मैं, outer surface and this is in the inner surface, outer surface and inner surface, whereas this is in the muscle itself or inside the organ, ये भी surface के ऊपर है, वो भी surface के ऊपर है, और ये organs के अंदर है। So that is with respect to the position. So extero, intero and proper, जो एक्चुअल रिसेप्टर्स जैसे नाम दिया है। ठीक है, ये बहुत ही इजी है याद रखने के लिए। चलो ठीक है, आई एम इरेजिंग दिस मच सो बिकॉज़ आई वांट द एंटायर बोर्ड फॉर मेकिंग यू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज बेस्ड ऑन द फंक्शन। So classification based on function. So under this you have several types. ठीक है, पहला पढ़ेंगे that is mechanoreceptors. Receptors which take up mechanical stimulus. Mechanical stimulus can be touch, it can be prick, it can be pressure, it can be simple touch, or it can be at pressure. ये भी pressure apply कर रहा हूं मैं, ठीक है, or it can be prick. So any type of impulse, any type of mechanical touch or mechanical inputs are included under mechanoreceptors. ठीक है, mechanoreceptors के बाद then you have the next topic, that is thermoreceptors. Thermoreceptors are associated with your temperature. ठीक है, thermoreceptors, and then you have photoreceptors, and then you have phonoreceptors. Photoreceptors, receptors to light, phonoreceptors, and the last one which we have is nociceptor. ठीक है, nociceptors. So now when you talk about mechanoreceptors are associated with tactile function. मतलब घूम फिर कर बात क्या है, tactile receptors, touch से associated receptors. ठीक है, so they take up mechanical stimulus. Here they take up heat related stimulus, heat and cold. Here the stimulus is light, they respond to light. Here the stimulus is sound vibration. ठीक है, वहां का stimulus के बारे में आते हैं 2 मिनट में. So mechanical receptors में you have 2 major types again. इसको 2 सेक्शन में पढ़ेंगे. 2 major type, that is tactile receptors and the other is baroreceptors. ठीक है, tactile receptors associated with slight touch, थोड़ी सी टच के कंडीशन में है. ठीक है, so tactile receptors में you have to remember a few names. ठीक है, जैसे for example Meissner's corpuscles, Merkel's corpuscles, Pacinian corpuscles etc. ठीक है, तो पहला we'll try to understand the इसके टाइप्स हैं, कुछ नाम लिखने आपको, that is
फर्स्ट इज मेशनर्स कॉर्पसल्स. ये स्पेशलाइज मतलब ये जो सेल है दैट इज रिसेप्टर सेल है, दे हैव अ बल्ज्ड एंड. ठीक है. सो मेशनर्स कॉर्पसल इज सेंसिटिव टू स्लाइट टच. इट इज सेंसिटिव टू स्लाइट टच. ठीक है. मेशनर्स रिसेप्टर के जैसे ही देयर इज अनदर रिसेप्टर व्हिच इज कॉल्ड एज मर्कल्स रिसेप्टर्स. मर्कल्स कॉर्पसल्स. Merkel's corpuscle is also associated with touch, but Merkel's corpuscle is situated deeply. It is deeply situated in your skin. Deeply situated in the skin. ठीक है. Merkel's corpuscles. एक और corpuscle नाम ये होता है, that is Pacinian corpuscle. Pacinian corpuscles are associated with vibrations or pressure. Vibrations or pressure, that is Pacinian corpuscles. देखो बहुत ही सिंपल है, याद रखना. Meschner corpuscle को याद रखो स्लाइट टच. Merkel corpuscle डीप है ना, दोनों टच ही है, बट ये सुपरफिशियल सिचुएटेड, ये डीपली सिचुएटेड. अंदर क्या कैसे इसको याद कर लो. डीप जाकर मर, याद हो गया है ना. डीप जाकर मर, मर्कल्स कॉर्पसल्स है ना. हम बोलते हैं ना कुएं में कूद के मर, कुआं तो डीप होता है ना. हम बाल्टी में कूद के मर तो नहीं बोलते बेटा, है ना. तो कुआं तो डीप होता है, तो डीप जाकर मर. अगर ऐसे याद रख लिया तो आपको समझ जाएगा कि ये डीपली सिचुएटेड है, तो ये ऑटोमेटिकली फ्रंट में फ्रंट नहीं, ये ऑटोमेटिकली सुपरफिशियल होगा. ठीक है. पेसिमियन कॉर्पसल ये तो याद कर सकते हो, वाइब्रेशन पी और प्रेशर सेम है, इसको ऐसे याद रखो. ठीक है. सो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू टैक्टाइल रिसेप्टर्स. उसके बाद करो बेटा बैरो रिसेप्टर्स. हमने पढ़ा बैरो रिसेप्टर्स. बैरो रिसेप्टर्स आर वेयर दे आर एसोसिएटेड विद प्रेशर. ये प्रेशर अलग, ये प्रेशर अलग. दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द ब्लड प्रेशर और प्रेशर ऑफ द फ्लूइड. ठीक है. सो बैरो रिसेप्टर्स आर सीन इन द एंडोथेलियम. बैरो रिसेप्टर्स आर सीन इन द एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड वेसल्स. ठीक है. चलो. सो दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द मैकेनो रिसेप्टर्स. मैकेनो में टैक्टाइल पढ़ा हमने, बैरो पढ़ा. टैक्टाइल के अंडर मेशनर्स कॉर्पसल, मर्कल्स कॉर्पसल्स एंड पसीनियन कॉर्पसल्स. नाउ थर्मो रिसेप्टर्स. थर्मो में भी कॉमन सेंस है बेटा. थर्मो में हीट के लिए कुछ रिसेप्टर्स होंगे, कोल्ड के लिए कुछ रिसेप्टर्स होंगे, है ना. सो हीट के लिए जो रिसेप्टर है, दो let's try to understand. There are two concepts again, two types here, है ना. One is called as heat के लिए जो corpuscle है, that is Ruffini's corpuscles. So heat के लिए है ना बेटा, तो heat के लिए नाम है उसके लिए, we will write it as calororeceptor. Caloro मतलब heat. Calororeceptor या calorie receptor, whatever you want to call it. ठीक है. Calororeceptor is associated with heat. Associated with heat. इसका एग्जाम्पल क्या होगा? Ruffini's corpuscles. Ruffini's corpuscles. ठीक है. Calorifini, Calorifini, Calorifini ऐसे याद रख लो. ठीक है. सो जो हीट सेंसेशन है, एक इंक्रीज टेम्परेचर का जो इंपल्सेस लेके जाएगा, दैट इज रफिनीज कॉर्पसल्स. सिमिलरली यू हैव फ्रिजिडो रिसेप्टर्स, जो कोल्ड टेम्परेचर्स को लेके जाएगा, मतलब एक्सट्रीम लो टेम्परेचर का स्टिमुलस लेके जाएगा. सो दैट इज कॉल्ड एज फ्रिजिडो रिसेप्टर. आई डोंट नो व्हाई एम आई राइटिंग इन डिफरेंट कलर्स. जो आप में मिलता है उससे लिख रहा हूं बेटा, प्लीज डोंट माइंड. ठीक है. Frigidoreceptor is associated with low temperatures, freezing temperatures. ठीक है. और इसका एग्जाम्पल है, क्रॉसेज कॉर्पसल्स.
क्रॉसेस कॉर्पसल्स, ये क्रॉसेस नाम पढ़ा होगा आपने, है ना, डोबीज लाइन, क्रॉसेस मेम्ब्रेन, कौन सा वो जेड लाइन को बोलते हैं, है ना। तो क्रॉसेस कॉर्पसल्स, अब इसको याद कैसे करोगे, ये अगर नहीं याद रहा ये याद कर लो। अब याद कैसे करना है, कुछ भी बकवास लॉजिक है बट याद हो जाती है एग्जाम में, पता नहीं कैसे, ठीक है। तो फ्रिज है, फ्रिजिडो मतलब फ्रिज, फ्रिज एक जमाने में फ्रिज आती थी, वो फ्रिज का नाम था केल्विनेटर, है ना, जिसमें पेंगुइन की ऐड होती थी, पेंगुइन का लोगो था उनका। तो फ्रिज केल्विनेटर के और क्रॉसे के, ठीक है। सो के और फ्रिज, सो फ्री एक जमाने, एक छोटा सा लिख सकते हो फ्रिज केल्विनेटर फ्रिज, है ना। तो केल्विनेटर फ्रिज के हिसाब से आप फ्रिजिडो क्रॉसो को याद कर सकते हो, बिकॉज़ एग्जाम में ये दोनों चीज का कंफ्यूजन होगा आपको, रफीनी और ये। तो इसको आप याद कर लो, कैलरफिनी, है ना, कैलरफिनी या फ्रिजिडो केल्विनेटर फ्रिज, ठीक है। सो आई डोंट नो हाउ मच इट हेल्प्स यू, बट इट यूज्ड टू हेल्प मी अ लॉट व्हेन आई वाज स्टडीइंग दिस। So that is what I also believe, that you also have maybe you have better IQ than me, but मैं ऐसे ही पढ़ता था बेटा, छोटे छोटे स्टेप्स लेकर मैं आज यहाँ पे हूँ। एनी विच वेज कम बैक, है ना, मुझे खुद की तारीफ नहीं करनी चाहिए, बहुत ही बुरी बात है, कर दिया, माफ कर दो, ठीक है। कम बैक, फोटोरिसेप्टर्स आर एसोसिएटेड विद ये पढ़ने वाले हैं आईज में हम लोग, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स में ले लो बेटा, रॉड्स एंड कोन्स, ठीक है। दीज आर द स्पेशलाइज्ड फोटोरिसेप्टर्स ऑफ योर रेटिना। फोटोरिसेप्टर्स इज एसोसिएटेड विद साउंड, एग्जांपल इज ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, ये भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नाउ नोसिरिसेप्टर्स, nociceptor is a type of receptor which basically inhibits the pain receptors to go to your brain. मतलब for example, मतलब in other words, noci का मतलब है, noci refers to harm, ठीक है। तो ये ऐसा एक रिसेप्टर है जो पेन, फॉर एग्जाम्पल, है ना, दांत दर्द है आपको, तो दांत दर्द का पेन रिसेप्टर, पेन इज बीन सेंस्ड बिकॉज यू हैव एन पेन एरिया हियर, और वो पेन एरिया अगर बहुत ज्यादा स्टिमुलेट हो गया, सो देयर कैन बी डैमेज टू योर ब्रेन, है ना। तो नोसी रिसेप्टर्स दे इनहिबिट द हार्म कॉज टू द ब्रेन, बाय इनहिबिटिंग द पेन रिसेप्टर्स। मतलब जो भी आपका पेन सेंसेशन है वो वहां तक, ब्रेन तक पहुंचाने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, बट वो कम करेगा, इट decreases the harm caused to the brain due to the pain। मतलब जो भी आपका पेन रिसेप्टर्स है उसकी इंटेंसिटी को कम कराएगा, ठीक है। वैसे स्पेसिफिकली नोसी रिसेप्टर नाम का कोई चीज नहीं है, एनी रिसेप्टर इफ इट इज स्टिम्युलेटेड रिपीटेडली इट टर्न्स आउट टू बी अ नोसी रिसेप्टर। मतलब जोर से अगर आपको कान में किसने चिल्लाया, है ना, यू हैव एन एबिलिटी टू हियर साउंड विद इन द रेंज ऑफ द साउंड वाइब्रेशंस, ठीक है। तो जैसे ही वो रेंज के ऊपर कोई कान में आकर जोर से चिल्लाता है ना, तो शार्प योर ईयर स्टार्ट्स पेनिंग, सो दैट हियर अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस, या फिर रिपीटेडली अगर आपको वही चीज किया जा रहा है, सो दैट सेम ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, दैट इज द सेम receptor of the sound now starts behaving like a nociceptor। मतलब आपका पेन जो है, आपका पेन is only restricted to your ear, it does not damage the hearing area। समझ में आ रहा है बेटा, है ना। घूम फिर कर लॉजिक वापस बता दे। पहला काम क्या था ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई का, इट यूज्ड टू टेक अप साउंड टू योर ब्रेन एंड इंटरप्रिटेट दिस साउंड। अब इफ कॉन्स्टेंटली वही साउंड है, कॉन्स्टेंटली जोर से साउंड आ रही है, योर ईयर स्टार्ट्स पेनिंग, राइट। सो वेरी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस जाएगा, किसने जोर से चिल्लाया, है ना, जोर से चिल्लाया, इतना जोर से चिल्लाया कि आपके कान दर्द करने लगे। एंड नाउ अगर ये स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस आपके ब्रेन में गया, सो इट माइट कॉज हार्म टू योर ब्रेन। सो इट इज बेसिकली इनहिबिटिंग द सेंसरी इनपुट, मतलब इतना ज्यादा तो इंपल्स एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होता, राइट। सो इट इज बेसिकली इनहिबिटिंग द सेंसरी ऑडिबल साउंड इनपुट, and it is converting a few of the sound impulses, few of the sound stimulus into pain,
ठीक है, thereby preventing the damage or harm caused to your brain. So that is nociceptor. Similarly आंखों के कंडीशन में भी है, too much light अगर आप देखते हो तो आपके आंख दर्द करने लगते हैं, है ना। तो too much ऐसा तो नहीं होता ना बेटा कि अगर आप चीजें देख रहे हो, सूरज को देखने की कोशिश की है ना, सब करते हैं, बचपन में सबने किया है, बट आज हमको समझ में आता है कि नहीं देख सकते। बचपन में तो ऐसा लगता है कि एटलीस्ट सर्कमफेरेंस तो दिख जाए। तो कॉन्स्टेंटली इफ यू आर सीइंग, इफ यू आर गेजिंग एट द सन, so after a period of time your ear starts paining, ear बोल रहा हूँ, shit, my mistake, और ये वीडियो पे रिकॉर्ड हो रही है, my mistake. So constantly if you are gazing at the repeat, मैं edit नहीं कर रहा हूँ because I am not that tech savvy, so exempt this particular line, ठीक है, कट कर लो अपने दिमाग से। तो if you are gazing at the sun, if you are gazing at the sun, constantly अगर आप देख रहे हो तो आपके आंख दर्द करने लगेंगे over a period of time, right? अगर ये नहीं होता, आंख दर्द करने नहीं लगेंगे, मतलब हियर नाउ द ब्रेन इज कंसंट्रेटिंग ऑन टू थिंग्स, एक तो विजन, दैट इज इमेज, एंड द अदर इज इट इज कंसंट्रेटिंग ऑन द पेन. तो डैमेज which is caused to your occipital lobe with respect to that extra light or with respect to that image, it can be prevented by the nociceptors. ठीक है, so nociceptor जो है it prevents the harm caused to the brain. ठीक है, or in other words, any receptors stimulated repeatedly behaves like, example है मेरा, any receptor stimulated repeatedly behaves like a nociceptors. ठीक है बेटा, ओवर स्टिमुलेट अगर कर लिया, अगर आपने कर लिया, तो that will behave like a nociceptor. Nociceptor is not very important from the exam point of view, but concept point of view इसको याद रखना है, ठीक है। So this is the end of nervous control. ठीक है, टेक्निकली एंड ऑफ नर्वस कंट्रोल. आई टोल्ड यू अगेन एंड अगेन, मैं जस्ट ये बोल के तुम लोगों को क्षणिक सुख दे रहा हूं, है ना। वी विल हैव टू कम बैक फॉर द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज आई एंड ईयर. मे बी टू लेक्चर्स पर आई एंड ईयर. आई एंड ईयर पे हम डिटेल में करेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. आई विश आई कुड टीच, आई विश आई कुड हैव टेकन अ रेगुलर क्लास, बट देन we all are the slaves of the time, any which ways. So any which ways, I hope this much part is absolutely clear to you guys, and any particular doubts and query you can absolutely post on Classroom, and we can expect maybe let me go and figure out if we can take up week में एक बार we can take up a live session. I'm planning to take up a live सेशन फॉर बैच 2 क्योंकि उनका सिलेबस पीछे चल रहा है. तो अपार्ट फ्रॉम दिस वीडियो लेक्चर्स दे विल आल्सो बी टेकिंग अप लाइव सेशंस फॉर अ चैप्टर कॉल्ड सर्कुलेशन. ठीक है, इफ दैट थिंग गोज वेल आई विल आल्सो अरेंज वीकली डाउट सेशंस फॉर बैच 1 एंड बैच 2 सेपरेटली, बिकॉज साथ में नहीं होगा इसका. ठीक है, आई वाज अ लिटिल मोर ऑक्यूपाइड विद माय ओन स्टफ. So now let us assume that I can, or let us think, or let me think. Ask you, आप लोग क्या सोचोगे? Let me try and channelize all my time and all my energy for this particular work. ठीक है? So that is all for today. Take care of yourself. Let me sign off for the end of the chapter. Thank you so much. God bless you.